Good morning students. Today we will learn regarding scale. There are two scale, plane scale and diagonal scale. Now what is the requirement of scale? To represent any larger distance in a smaller page, you need scale. That is reduced scale or enlarged scale. If I want to represent distance from Ahmedabad to Baroda, that is approximately 120 kilometer in a smaller page, then how I can represent that? I can take a scale like that. 10 kilometer equal to 1 centimeter. So to represent 120 kilometer, I need 12 centimeter long line. So by using the scale, I will draw a line of 12 centimeter. It actually represent 120 kilometer, correct? So this will be the scale. Now, if someone tells us that represent Anand city at 65 kilometer from Ahmedabad, 65 kilometer from Ahmedabad, then how I can represent Anand city on this scale? So before that, before showing Anand, I just need to divide this scale into 12 equal parts. Why 12 equal parts? Because I divide 12 equal parts, then one division will represent 10 kilometer. This will be 10 kilometer. 10, 10, 10, 10, and in this way, this will be total 120 kilometer. So this 10 kilometer, and I need to show 65 kilometer. So this will be our first 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 5. So in between this, I need to divide this division into 10 equal parts, and fifth division will represent Anand on this scale. Now if someone says Nadiyar, so the Nadiyar at 47 kilometer. So I think now you can also draw that 47 kilometers. So how you can represent this 10, 10, 10, 10, 40, and this make this division, divide this division into 10 equal parts, and seventh division will represent the distance of Nadiyar, that is N. Nadiyar, N. Now if someone says that so the Vasal at 87 kilometer from Ahmedabad, 87 kilometers. So how you can represent Vasal on this scale? You can also guess that this is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8. So 80 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर हो गया. ये 8 और 9 के बीच में ये जो है उसके 10 इक्वल पार्ट्स बना दो, और यहाँ से 7th डिवीजन will represent 87 kilometer. Now I think it will be easily understood that how to represent any city between this scale. Now students, we have seen that if any location you want to represent on this scale, you can easily represent. But what is the difficulty we have faced to show this all the city on the scale is every time we need to divide this 4 to 5 into 10 equal parts, 6 to 7, 10 equal parts, 8 to 9, 10 equal parts. If in future someone says that locate 97 kilometer, 97 kilometer on this scale. So what you will need to do that just divide this 9 and 10 into 10 equal parts, and 7th division will be 97. From here 7th division will be 97. So to reduce this exercise of making 10 division of a smaller division, what we can do is this will be our Ahmedabad to Baroda, total 12 equal division. So now we are not starting from here, we are starting from here.
this is our 0. This will be our 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and the last division, that is 12. We are just making 10 equal parts over here. So this will be our 12th division. This division will be considered as a 12th division. Now, if now see the beauty of this scale, that if someone need the location of Nadiad at 47 kilometer, then how to represent? From 0 to 4, 0 to 4, and 7th division from here, from 0th side. You need to calculate from towards left. At 7th division will be 47. If someone says 65 kilometer, then it will be easy for us that 0 to 6, मतलब 60 किलोमीटर हम यहाँ बताएंगे और 5 किलोमीटर जो ऊपर के रहे वो हम यहाँ से 5th डिवीजन ले लेंगे. तो दिस विल बी अवर 65 किलोमीटर. If someone says 87, then 0 to 8 and 7th division from here. So it will be our 87 kilometer. So it is very easy to locate any distance on this scale. So what we have did, we are starting 0 after 1 division, not from here but from here. So it will be very useful to locate any distance in future also. Now students, to solve any problem of plane scale, we need to follow few steps. That is, first step is to identify the representative factor. Second one is a line, draw a line of that scale. That in previous we have draw a line of 12 centimeter. Now third step is to make a division. That कितने डिवीजन बनाना है. जैसे हमारी जो लाइन थी वो 120 किलोमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की, लेकिन उसके डिवीजन कितने बनाने हैं? तो 12 बनाने हैं. वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? अगर हम 12 डिवीजन बनाएंगे तो एक डिवीजन हमें 10 किलोमीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा. बरोबर. इसमें डिफिकल्टी क्या आ सकती है आप सोचो. जैसे कि आपने 120 किलोमीटर यहाँ पे ड्रॉ किया. बरोबर. 120, दिस इज 120 किलोमीटर. एंड इफ यू आर मेकिंग 10 डिवीजन, if you are making, this is 120 kilometer, or you can say 12 centimeter. Now students, see what is the importance of making a division. This is our 120 kilometer line that will we have represented in within 12 centimeter. Now instead of making a 12 division, we are making a 10 division. 10. So what happened? See, नाउ 10 डिवीजन मतलब एक डिवीजन कितना रिप्रेजेंट करेगा? 1.2 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा. अभी कोई हमें पूछे कि हमें 65 दिखाना है, तो जैसे हम पहले कर रहे थे उतना इजी अब ये नहीं है. ये 9th डिवीजन आ गया और अपना लास्ट डिवीजन 10th डिवीजन. अभी 65, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई ये यहाँ से 6 नंबर और यहाँ से 5वां डिवीजन, तो ये हो गया 65. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक डिवीजन 10 किलोमीटर का नहीं है. एक डिवीजन 10 किलोमीटर का नहीं है. अभी एक डिवीजन 1.2 किलोमीटर का है. तो ये डिवीजन 1.2 किलोमीटर का है अभी. तो आपको 65 दिखाना है, तो आपने अगर ये 6 तक ले गए तो वन डिवीजन विल रिप्रेजेंट 1.2. तो आपको 6 से 7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 7.2. बरोबर. तो एक्चुअली आपने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लिया वो 7.2 किलोमीटर हो गया. बरोबर. तो आप ये नहीं कर सकते हो. इसीलिए ये 10 किलोमीटर अगर आप लोगे तो दिक्कत आएगी. तो हमें डिवीजन कैसे बनाने हैं, कितने डिवीजन बनाने हैं? तो जितना मैक्सिमम स्केल आया, जैसे कि ये मैक्सिमम स्केल था 120 किलोमीटर, तो ये जो नंबर है आगे के, एक डिवीजन तो बना नहीं सकते. तो उसके बाद का डिवीजन देखो कौन सा है? 1 and 2. तो इतने डिवीजन बनाओ, 12 डिवीजन. अगर आपने 12 डिवीजन बना दिए तो एक डिवीजन जो है वो
10 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा. सो दैट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट एनी डिस्टेंस. The fourth step is represent the required points. That is, we have shown in the previous example that Anand, Nadiyad, Vasad, in between Ahmedabad to Baroda. अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं प्लेन स्केल का. तो उसमें RF हमें पहले से गिवन है. गिवन डेटा क्या है? तो RF और मैक्सिमम मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 10 मीटर. उसमें वर्डिंग ऐसे होंगे, लॉन्ग इनफ टू मेजर 10 मीटर. बराबर. तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम मेजरमेंट. तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है लेंथ ऑफ स्केल, नॉट LOC बट LOS, लेंथ ऑफ स्केल. लेंथ ऑफ स्केल मतलब RF मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम मेजरमेंट. तो RF क्या है? 1/40 और मैक्सिमम मेजरमेंट कितना? तो अभी हमने देखा वो 10 मीटर. तो यहाँ पे हमें जो बहुत ध्यान से याद रखना है वो ये है, इसका यूनिट मीटर. तो हमें ये मीटर में ही रखना है. काफी स्टूडेंट यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है और इसका आंसर डायरेक्टली आ जाता है 10/40 मीन्स 1/4, तो 0.25. बरोबर. ऐसा करके वो लोग खड़े हो जाते हैं. लेकिन करना क्या फिर? ये 0.25 की लाइन कैसे ड्रॉ करनी, ये उनको समझ में नहीं आता है. इसीलिए पहले से हमें इसको मीटर लिखना है. मीटर के बाद सेकंड स्टेप क्या करना है? तो हमें जो ड्रॉ करनी है वो यूनिट है हमारा सेंटीमीटर या इंच. बरोबर. ये 2 यूनिट में हम ड्रॉ करते हैं. तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? मल्टीप्लाई बाय 100. और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आंसर है 25. तो लेंथ ऑफ स्केल मतलब हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है, जो अहमदाबाद टू बड़ौदा वाले एग्जाम्पल में हमने कितना किया था? 120 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया था 12 सेंटीमीटर से. वैसे ही 10 मीटर की लाइन को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी. अभी ये याद रखना है, ये 25 सेंटीमीटर मिटा देना है, क्योंकि दिस इज नॉट 25 सेंटीमीटर. वी हैव ड्रॉन दिस लाइन with the measurement of 25 centimeter, but this line will represent 10 meter. 10 meter. So now the third step is, अगर हमने लाइन ड्रॉ कर दी तो नेक्स्ट स्टेप होता है डिवीजन. बरोबर. तो इसके कितने डिवीजन करेंगे? तो ये नंबर आपको पढ़ना है एक बार. एक डिवीजन तो करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा. तो 10 है ना, तो इसके 10 डिवीजन कर देते हैं. तो ये एक डिवीजन 1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा. एक डिवीजन 1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा. तो 1 1 1 करके ये हो गए 10. और नंबरिंग हम कैसे करेंगे? तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, एक पहला डिवीजन छोड़ के हम नंबरिंग करेंगे. नाइन्थ तक गए और 10वां जो है वो यहाँ पे 10. यहाँ पे 10 क्यों लिखा है? वो 10th डिवीजन है इसीलिए यहाँ 10 नहीं लिखा है. लेकिन ये जो फर्स्ट डिवीजन है उसके 10 हमें डिवीजन बनाने हैं, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा है. तो ये 0 है, तो आप यहाँ से अगर ये 10 डिवीजन है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 चले जाओगे तो लास्ट में 10 आएगा. अभी ये एग्जाम्पल में हमें रिप्रेजेंट करना है 7.4 मीटर. 7.4 मीटर. So now it will be easy for you to represent this 7.4 meter. See, this is 1 meter, 2nd meter, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th. तो ये हो गया 7th तक. और 0.4 है वो हम इस साइड से दिखाते हैं. तो 4th डिवीजन दिखा के आपको ये लिख देना है, this will be the distance of 7.4 meter. अभी कोई हमें ऐसा बोले कि इसमें हमें 9.1 मीटर दिखाना है. 9.1 मीटर. तो कैसे दिखाएंगे? तो ये हो गया 9, 0 से लेके 9 और 1 मीटर, मतलब फर्स्ट डिवीजन. तो ये हो गया 9.1 मीटर. बराबर. तो ये एक एग्जांपल हमने समझने के लिए रखा है कि प्लेन स्केल में कैसे हम ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट स्टेप RF आइडेंटिफाई करो. यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले से दिया हुआ है. लॉन्ग इनफ टू मेजर मतलब मैक्सिमम मेजरमेंट आइडेंटिफाई करो. और लेंथ ऑफ स्केल दोनों को मल्टीप्लिकेशन से लेंथ ऑफ स्केल आइडेंटिफाई करो. लेंथ ऑफ स्केल मिलने के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है. कितने? 25 सेंटीमीटर की जो लेंथ ऑफ स्केल आया उतनी लाइन ड्रॉ करनी है. वो लाइन ड्रॉ करने के बाद 25 सेंटीमीटर भूल जाना है, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर नहीं है.
ये एक्चुअली क्या है, तो ये 10 मीटर है। तो 10 मीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप उसके डिवीजन है, तो डिवीजन कितने बनाने हैं, तो ये जो नंबर है 10 उसके ऊपर से ही हम बना सकते हैं। ये हो गया, एक तो बना नहीं सकते इसीलिए हमें इसको 10 डिवीजन बनाने हैं। 10 डिवीजन बनाने के बाद नंबरिंग कैसे करना है, तो एक छोड़ के 0 1 2 3 एक पहला डिवीजन छोड़ के करना है। फिर आप कितना भी रिप्रेजेंट आपको करना हो आप इजीली कर सकते हो।